Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 5. We are going to start Unit 1. First, I'm going to tell you SLO based lecture division for this unit, and then we'll learn what this unit is all about. So, my dear students, in lecture 1 under the title of formal and lexical skill, we'll learn about common and proper noun, and we'll cover the SLO to classify nouns as common and proper nouns, names of people, pets, places, mountains, lakes, rivers, etc. Lecture 2 under the title of formal and lexical skill, we'll learn about punctuation marks, and we'll cover the SLO to recall the rules of punctuation learned earlier. Lecture 3, we'll learn about homophones and homonyms, and we'll cover the SLO to locate, identify, differentiate between, and use some simple pairs of words including homophones and homonyms. Lecture 4, under the title of reading and thinking skill, we'll learn about long and short vowel sounds, and we'll cover the SLO to identify and pronounce long and short vowel sounds in different words. Lecture 5, we'll start reading and understanding the text of this poem, and we'll cover the SLO, recite the poems with actions, write the central idea of a given poem in simple language, use critical thinking to respond to the text post-reading, use post-reading strategies to respond to the text by applying word knowledge and own opinion to the text read. Lecture 6, under the title of Oral Communication Skills, we'll learn how to offer and accept apology, and we'll cover the SLO, use appropriate expressions in conversation to offer and accept apology. Lecture 7, under the title of writing, we'll learn how to write informal and formal letter, and we'll cover the SLO, write an informal letter and formal letter of application. So our focus will be on informal letter for this lecture. Lecture 8, under the title of writing, we'll learn how to write a paragraph, and we'll cover the SLO, write a guided paragraph using ideas gathered and organized through various strategies. So this is the SLO based lecture division for this unit. Now, my dear children, let's understand what this unit is about. So the title of the unit is Fruits and Vegetables, means फल और सब्जियां. सो बेटा, फल और सब्जियां हमारी डाइट में, हमारी खुराक में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इस टाइटल से भी हमें लगता है कि ये जो पोम है ये फल और सब्जियों की अफादियत के बारे में हमें कुछ बताएगी. तो लेट्स सी व्हाट डज इट टेल अस. Fruits and vegetables promote good health. It is the most important wealth. फल और सब्जियां अच्छी सेहत की बुनियाद होती हैं, और अच्छी सेहत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी वेल्थ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी सेहत है. कैसे? जैसे बेटा, जब आपकी सेहत अच्छी है तो बहुत सी चीज़ें आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत ख़राब है तो बहुत सी चीज़ें जो करने की सलाहियत आप में होती है, लेकिन अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से आप नहीं कर पाते. तो इसलिए अच्छी सेहत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और फल और सब्जियां अच्छी सेहत हासिल करने का एक रिसोर्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है. Results are in, we have all agreed, vitamins, minerals and fiber we need. Yes. अब जो पोइटेस है वो क्या कह रही है हमें? द पोइट ऑफ दिस पोम, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स. ये वो चीज़ें हैं बेटा, हम जो खाना खाते हैं ना उसमें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशंस होती हैं. उसमें वाइटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, और उसके रिसोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं. जैसे देखें यहाँ पर उसने लिखा है वाइटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स, यहाँ प्रोटीन्स नहीं लिखा. प्रोटीन्स का जो सोर्स है वो डिफरेंट होता है. वो हमें मिलता है गोश्त, अंडे वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऑयल्स, जो वहाँ से हमें मिलते हैं प्रोटीन्स. लेकिन जो हमारे फाइबर्स और मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं, ये
रिच फॉर्म में हमें मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आई कि हमें हर तरह का फूड खाना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स आवर डाइट बैलेंस। हम अगर चाहते हैं कि हमें हर तरह की एनर्जी मिले तो हमें हर तरह का फूड खाना चाहिए। तो मेरे बच्चे, यू आर स्मार्ट। ऐसे तो नहीं है जो कि मैंने ये नहीं खाना और मैंने वो नहीं खाना, ऐसे तो नहीं है। आप लोग सब चीज़ें खाते हैं, शाबाश बेटा, क्योंकि हमें एक हेल्दी बॉडी के लिए हर तरह की न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और अगर हम हर तरह की चीज़ें खाएंगे, हमें गोश्त भी खाना चाहिए, अंडे भी खाने चाहिए, दूध भी पीना चाहिए, सब्जियां भी खानी चाहिए और फ्रूट्स भी खाने चाहिए, राइट। तो इस तरह से हमें हर तरह की न्यूट्रिशन मिलती है, जिससे हमारी एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी डेवलप होती है, राइट। लेट्स मिनिमाइज, अब देखें, लेट्स मिनिमाइज दोस सॉल्टी चीज। अब एक और चीज हमारे पास आ गई। खाने के लिए तो हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, लेकिन खाते हुए हमने स्मार्टली अपनी चॉइसेस जो है उनको डेवलप करना। जो सॉल्टी चीज है वो आपने कम खाने हैं। क्यों? एनर्जी तो उससे भी मिलती है, लेकिन वो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिवेंट डिजीजेस। सॉल्टी चीज आपको हेल्दी नहीं करते, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो आपको इस तरह से हेल्दी करते हैं, इट प्रिवेंट डिजीजेस। और प्रिवेंट डिजीजेस क्या होता है? चलें थोड़ा सा लेट्स टॉक इन साइंस लैंग्वेज। आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल इम्यून सिस्टम है। वो इम्यून सिस्टम क्या करता है? वो आपकी, अगर किसी वायरस ने या किसी डिजीज ने आप पर अटैक किया, तो इम्यून सिस्टम फाइट्स विद दैट बैक्टीरिया और वायरस। जब हम ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हम उन वायरसेस के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली फाइट करते हैं। इसलिए वो बच्चे जो अपनी रूटीन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। तो आप सब लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप बीमारियों से दूर रहें, तो फिर ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करें। ऑलराइट, फ्रेश आर बेटर देन फ्रोजन और ड्राइड। रेंज ऑफ कलर्स शुड बी वाइड। यस, जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हर सीज़न के फ्रूट्स अवेलेबल हैं। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बेटा कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ गर्मियों के फ्रूट्स नहीं होते, और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ सर्दियों के फ्रूट्स नहीं होते। तो हमारा मुल्क तो अल्लाह ने बहुत रहमत की कि हमारे पास सर्दी भी है, गर्मी भी है। वी इंजॉय ऑल 4 सीजन्स, इसलिए हमारे पास हर सीज़न के फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल हैं। इसलिए हमें ड्राइड और फ्रोज़न की ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम उनको ड्राई या फ्रोज़न रखते हैं तो उसकी बहुत सी न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाती है। तो फ्रेश जो फ्रूट्स हैं वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, इसलिए हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रेफर करना चाहिए। और उसकी रेंज ऑफ कलर्स, अब यहाँ पे ये नहीं है कि कलर्स को ऐड कर, इसका मतलब है कि हर तरह के फ्रूट्स। तो यू सी, यहाँ अगर आप इस पिक्चर में भी देखते हैं तो हर फ्रूट का, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हर फ्रूट का कलर भी डिफरेंट रखा है। तो हम देखें, सुभान अल्लाह बेटा, ये चीज़ें हमें कितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार बनाती हैं कि हम उनके कलर्स को देखकर भी हमें अच्छा लगता है, और हम जितने ज़्यादा कलर्स अपनी प्लेट में ऐड करेंगे उतना ही हमारा अच्छे तरीके से उसको खाने को भी दिल करेगा। तो दिस इज़ व्हाट द पोएट इज़ टेलिंग यू कि आपने हर तरह का, अब ये नहीं है कि अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो यू आर जस्ट इनटू वन फ्रूट, के मुझे तो फॉर एग्जांपल मैंगो इज़ माय फेवरेट तो मैं बाकी फ्रूट्स में आई डोंट वांट। नो बेटा, यू शुड टेक ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स। अगेन, हर फ्रूट के अंदर भी न्यूट्रिशन का जो सेटअप है ना वो डिफरेंट है। किसी फ्रूट में आयरन ज़्यादा है तो किसी फ्रूट में विटामिन सी ज़्यादा है। जब हम उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमें दोनों रिच फॉर्म में मिलते हैं, और हम वो खाते हैं, अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, राइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैनेज आवर वेट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यहाँ पर ख़ास तौर पर आपकी एज के बच्चे, मोटे होना हेल्दी होना नहीं होता, ठीक है। सम टाइम हम जब बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो भी हम फूल जाते हैं, वो सेहत नहीं है। सेहत वो होती है कि आपका बॉडी इज़ इन अ शेप एंड इट इज़ अप्रोप्रिएट टू योर एज, ठीक है। आपका वेट, आपकी हाइट आपकी एज के मुताबिक हो, ये हेल्थ है, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से भी ज़रूर हेल्प लें, अपनी साइंस टीचर से भी पूछें कि मेरी एज और मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली मेरा वेट कितना होना चाहिए, और वो वेट जो है उसको आप कंट्रोल करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ, राइट।
हेल्दी कैलोरीज ऑन अ वाइट प्लेट। कैलोरीज क्या होती हैं बेटा? जैसे हम किसी भी चीज़ को मैयर करते हैं, जैसे आपने अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना है तो यू चेक इट इज इन फ़ारेनहाइट्स और सेंटीग्रेड। इसी तरह आपने किसी चीज़ का वेट चेक करना है तो हम किस में चेक करते हैं? किलोग्राम्स में। तो जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, उसको मैयर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है उसको कहते हैं कैलोरीज। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो हेल्थ है दैट इज योर वेट अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर हाइट, उसके लिए हमें एक अप्रोप्रिएट कैलोरी इनटेक होता है। ठीक है। सुभान अल्लाह, वंस अगेन, बहुत ज़्यादा खाना नॉट हेल्दी, बहुत कम खाना नॉट हेल्दी, एतदाल में खाना ही हेल्थ है। और सुभान अल्लाह, ये हमारा इस्लाम भी हमें सिखाता है ना कि हर चीज़ को एतदाल में रखो, हर चीज़ को मुतनासिब रखो। अब वो जो हमारा फूड है कितना हमें लेना है वो हमें बताता है कैलोरी काउंट। और वंस अगेन दैट कैलोरी अब तो बहुत इजीली अवेलेबल है, इफ़ यू कैन मैनेज इट। आप अपने जो करीबी आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कहें कि आपको कैलोरी चार्ट। लेकिन आपकी एज में बेटा वट एवर मामा गिव्स यू, ठीक है, मामा का बनाया हुआ खाना और आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट्स गुड फॉर यू, द बेस्ट फॉर यू। ऑल राइट, आई वुड प्रेफर, मुझे पता है कि आपकी एज के बच्चे दे लव पिज़्ज़ा, लेकिन बेटा घर में मामा ने जो मटन पुलाव बनाया ना वो उस पिज़्ज़ा से बहुत बेहतर है आपके लिए। सम टाइम इट्स ओके बट नॉट वेरी ऑफनली। बेहतर वो है मामा किसी, वो भी देखिए बेटा सुभान अल्लाह वैरायटी ऑफ फूड है। किस दिन मामा आलू की भुजिया बना देती हैं, किसी दिन मामा आपको मटन पुलाव बना। अब वो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस यू आर टेकिंग। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि घर का बना हुआ खाना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। बाहर जो खाना बना है वो हाइजीनिकली कितना अच्छा है, उसमें सही तरह उन्होंने उसको वॉश किया या नहीं, पकाने वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है या नहीं, किस तरह का पानी, कितनी चीज़ें हैं। तो हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए व्हाट वी डिसाइड, होममेड फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर दी बेस्ट, वो कैलोरी काउंट के हिसाब से भी और आपकी हेल्थ के लिए भी। वाई? बिकॉज आर हेल्थी लाइफ स्टार्ट्स विद नोइंग दे आर नेचुरल, दे कीप अस गोइंग। ठीक है। जो हेल्दी लाइफ, आज से पहले अगर हमें नहीं पता था और हम अननोइंगली कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे थे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो आज हमें पता चल गया है कि हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और उसके लिए हमने अपनी डाइट को प्योर और हेल्दी बनाना है। ठीक है। क्यों? जो नेचुरल वेज होते हैं ना बेटा वो बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है ना, तो अल्लाह ताला को पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। हमारे साथ ही अल्लाह ताला ने वो चीज़ें भी बनाई ताकि हम उनको खाकर अच्छे सेहतमंद रह सकें। अब जब हम उनको छोड़कर किसी और ट्रैक पे चलते हैं तो हम नेचर के अगेंस्ट चले जाते हैं और उससे हमें नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। राइट। और हमारी जो अच्छी सेहत है इसने थ्रू आउट हमारे साथ रहना है। जैसे आप अगर अनहेल्दी फूड हम लेते हैं वो थोड़े से टाइम के लिए हम उसको खाते हैं, अपनी सेहत को ख़राब करते हैं और थोड़े से टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम अगर अच्छा फूड खाते हैं, अच्छी सेहत बनाते हैं, तो इस सेहत ने सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलना। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। माशाल्लाह, अभी यू आर जस्ट अ यंग बॉय, आप यू विल ग्रो अप, यू विल बी अ स्ट्रॉन्ग मैन, और फिर आपने बहुत ढेर सारा काम करना है, स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग लेडी। तो उसके लिए हमारी सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और बेटा सेहत अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको हमने अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में ऐसे तो नहीं भेज दिया, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एंड यू नो व्हाट डज अल्लाह से इन कुरान? अल्लाह सेज, ओ यू हु बिलीव, बी केयरफुल ऑफ योर ड्यूटी टू अल्लाह एंड बी विद द ट्रू वंस। ठीक है। तो अल्लाह हमें रिमाइंड करा रहे हैं बेटा कि हमारी अल्लाह के साथ, अल्लाह ने हमें दुनिया में किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए भेजा है। लाइफ इज़ नॉट टू जस्ट चिल, ईट एंड स्टे, इट्स व्हाट एवर वी डू। हम जो करते हैं, हम जो खाते हैं, उसका मकसद ये है कि हम अल्लाह की फरमाबरदारी कर सकें। और बेटा जब हम इस नीयत के साथ खाना भी खाते हैं ना, कि अल्लाह ताला ने हमें कहा कि पाक, हलाल और तय्यब खाना खाइए,
और फिर उससे अच्छी सेहत पाइए और अल्लाह की राह में काम करें। तो जब हम इस नीयत के साथ खाना खाते हैं तो खाना खाना भी इबादत बन जाता है। जब आप एक एप्पल खाने लगते हैं, उसको वॉश करें, उसको गौर से देखें, अल्लाह की आप तारीफ़ बयान करें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितना प्यारा एप्पल बनाया और कहाँ ये एप्पल ग्रो हुआ था और कहाँ ये चल के मेरे पास आया। सो थैंक यू अल्लाह एंड से बिस्मिल्लाह एंड देन ईट इट। तो वो एप्पल खाना भी आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो आपका एक अमल बन जाता है। तो बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका हमने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़ी चीज़ें बनाती हैं। और हमने अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल इसलिए रखना है कि हमें अल्लाह ताला ने जो ड्यूटी दी है उसको हम अच्छे तरीके से निभा सकें। एंड इन इंग्लिश वी से यू आर व्हाट यू ईट। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड हमने अपने खाने पर बहुत कंट्रोल रखना है। हम हेल्दी फूड लेंगे और इंशाल्लाह अच्छे सेहतमंद बच्चे और फिर अच्छे सेहतमंद ग्रोन अप बनेंगे, ताकि हम अपने मज़हब के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकें। राइट मैम? तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये ब्यूटीफुल पोम हमने अंडरस्टैंड की है। अब हम कल इसके ग्रामर पोर्शन से अपने यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जो अच्छी बातें हमने सीखी हैं इनको याद रखना है और इन पर अमल करना है और दूसरों को भी बताना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द पीपल अराउंड यू। Thank you and Allah Hafiz.